کیا مطالبات ہیں اور کب تک آپ یہاں رکیں گے، اور کیا آپ کے حکومت پاکستان نے آپ کے مطالبات مانے ہیں نہیں مانے، اور آگے آپ لوگوں کا کیا سٹیپ ہے یہ بتائیے گا پلیز۔ مطالبات تو ابھی تک ہمارے کوئی بھی مانے نہیں گئی ہیں، رہنے کے بعد ہے کب تک رکنا ہے یہ تو حکومت پہ ہے۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم لوگ یہاں سے نہیں جانے والے، مطالبات منظور ہو گئے تب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے۔ اور کتنے دن سے میڈم آپ لوگ یہاں رکے ہوئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو کوئی جواب آیا ہے نہیں آیا، کیا سین ہے؟ آج ہمیں تیسرا دن ہے لیکن حکومت کی طرف سے جواب آیا ہے لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہمیں۔ تو اب کیا آپ اس کے بعد بھی یہاں رکیں گے یا؟ اگر مطالبات منظور ہو گئے تو پھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت نے ہماری بات سن لی، ہمارے مطالبات منظور کر لیے۔ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 بجے کے بعد آرڈر دیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہاں سے، یہ گاڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منگوائی گئی ہیں، حکومت کی جانب سے بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سیکورٹی ٹائٹ کر دیا، ہمیں سب کچھ پتا تھا، لیکن اگر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے اپنے مطالبات منظور ہوں، جب تک نہیں ہوتے ہم لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اور رہی بات سیکورٹی کی، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ڈرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے، ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمیں صرف ڈرا رہے ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے مطالبات منظور جب تک کروا کے پھر یہاں سے جائیں گے۔ سر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمیں صرف ایک سیلری دی جاتی ہے، صرف ٹوٹلی ایک، جس سے ہمیں ڈینگی بھی کروایا جاتا ہے۔ یہ کرونا آیا ہے، ان کو ڈر لگتا تھا، جو کرونا کا ہماری فیلڈ میں کوئی پیشنٹ مطلب کوئی بندہ باہر سے آ گیا ہے تو اس کا انٹرویو پورا ہم نے لینا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے کس ڈیٹ سے آیا ہے، اس کا سیل نمبر لکھنا ہے، اس کو یہ پوچھنا ہے کتنے دن اسٹے کرو گے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور ہم بیٹھ کے ان سے پوری معلومات لے کے سٹیپ بائی سٹیپ آئی ڈی کارڈ لے کے پکس ان کے ساتھ بنا کے ہم ان کو واٹس ایپ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بندے سے بات کر لی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا رسکی کام کرنے کے باوجود، یعنی کہ آپ مین پہ تھے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کی جانیں بچاتے رہے، لیکن حکومت کی جانب سے آپ کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ بالکل سر، بالکل ہمیں نہیں دیا جاتا۔ اور اب آپ کے مطالبات کیا ہیں یہ بتائیے گا، کہ اگر حکومت آپ کو یہاں سے، اگر آپ کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا تو آپ لوگ کیا اگلا آپ کا کیا اقدامات ہوں گے؟ ہمارا وہی اقدامات ہوگا جو ہماری میڈم یہاں پر بیٹھی ہیں، جو ان کا حکم ہوگا ہم ان کے حکم کے ساتھ ہیں، لب بیک ان کے ساتھ ہماری۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور ہم 3 دن سے انٹرویو دے رہے ہیں، ہمارے مطالبات پہ تمام میڈیا کو آپ لوگ انٹرویو دے رہے ہیں؟ جی ہم 3 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن سے ہم تمام میڈیا کے انٹرویو دے رہے ہیں، اور 3 دن سے ہمارے کوئی مطالبات نہیں۔ ہماری جو مطالبات ہیں وہی ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن سیم 3 دن گزر گئے لیکن کوئی بھی اس کے مسئلے کا حل کوئی نہیں نکل رہا۔ بتا کے تھک چکے ہیں، میڈیا کو بھی بتا چکے ہیں، اور جو بہنیں بار بار بتا رہی ہیں آپ لوگ بار بار انٹرویو لے رہے ہو، تو بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات خان صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کے مطالبات پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ہم خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ آپ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور میں تبدیلی لاؤں گا، اور ہم خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر آئیں اور ہمارے مطالبات سنیں، اس پر عمل درآمد کریں۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میں تبدیلی لاؤں گا، یہ تبدیلی ہے۔ اور جو خان مجھے تو شرمندہ ہی کر دیا نہیں، کیونکہ میں واحد ایک لڑکی تھی جس نے نا اس محلے میں خان صاحب کو ووٹ دی تھی، کوئی بھی ووٹنگ نہیں دے رہا تھا، میں سب سے لڑ کے سب کے پاس جا کر ان کی کر رہی تھی کہ خان صاحب کو دیں، کیونکہ یہ نیو آ رہے ہیں تو کیا پتہ ہمارے، کیونکہ نیو آئے ہیں تو یہ حکومت یہ عوام کے بارے میں سوچیں گے۔ اور آپ اب تک کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ عورتیں باہر آ گئی؟ نہیں، پہلے تو اچھا ہی جا رہا تھا سارا سسٹم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان جو قوم ہے نا، پٹھان، وہ تو اپنے بائت پہ قائم ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، غیرتی ہوتے ہیں، لیکن میں جب ادھر سے میڈم اب اس کے بعد آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اگر یہ لوگ نہیں کرتے، ابھی 9 بجے کو بتایا جا رہا ہے کہ اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ پٹھان قوم ایسی قوم ہے جو غیرت مند ہے، ماؤں بیٹیوں بہن کے بارے میں ان کو پتہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں ہماری بات سن رہے، ہمارے مطالبات کیوں نہیں پورے کر رہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ خان نیازی صاحب ہیں، کیونکہ ہم جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بھی پٹھان قوم بیٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے وہ ہماری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ہمارا پانی، کھانا پینا اور واش روم بند کیے ہوئے ہیں،
हम भूखे नहीं मरेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और ना ही हम उठने वाले हैं। हाँ, 3 दिन हो गए, मसले मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं, लेकिन देखें आपके सामने हम साबित कदम हैं, हम कुछ भी नहीं। होती है वाशरूम का भी मसला औरत को हो रहा है, नमाज का सबसे मेन जो मसला है, जो नमाज हमारी कज़ा हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है? इनकी वजह से हो रही है। मैं घर से जब चली ना तो मैं कोई चीज़ें वगैरह कोई नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैंने उनको बोला घर वालों के कि ये खान साहब जो है ना इतने अच्छे इंसान है ना कि ये औरत ज़ात को ना 1 घंटा भी उधर नहीं बैठने देंगे, हमारे मुतालबात ना ये कर देंगे। लेकिन इधर आके सिचुएशन ही बिल्कुल चेंज हो गई। इधर आके तो मैं रात को लेटी हुई थी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं कैसे नींद आए, नहीं आ सकती ना बेड पे, और चरपाई वगैरह बंदे जैसा सोता है वैसे इधर नहीं ना आ हमने सोचा सकती। था हमारे मुतालबात पूरे होंगे, 1-2 घंटे में हम घर आ जाएंगे। घर वालों को हमने बोला था कि रात तक हम घर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनको वोट दिया था इसलिए कि ये तब्दीली लाएंगे, लेकिन इन्होंने तो और ही तब्दीली कर दी, और हम ये बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने वाकई बेड़ा गर्क कर दिया, और हम चाहते हैं कि अगर हमसे 10 काम लिए जा रहे हैं तो हमें 10 कामों का मुआवजा दिया जाए, ये नहीं कि काम 20-25 लिए जा रहे हैं। और उस वक्त खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान बनाऊंगा, अपने लिए तो उन्होंने धरना इधर दे लिया था, और जब हम धरना देने आए बाप, तो अब आपके धरने में रुकावटें डाली जा रही हैं। रुकावट सबसे बड़ी रुकावट है कि खाना पीना बंद कर दिया गया, लाइटें बंद कर दी गई हैं, वाशरूम बंद कर दिया गया। हमारे सामने बिल्कुल बंद है ऐसे। बात सुने, जो भाई होते हैं वो बहनों के सर पे हाथ रखते हैं, और हम ये कहते हैं ये ऐसे भाई हैं जिनको पता नहीं कि 3 दिन से हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस रोड पे रुल रही हैं। बर्दाश्त कैसे ये लोग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है इनके कि इनके भी घर में माँ बहनें बेटियां होंगी ना, क्या इनको एहसास नहीं है? बस इंसानियत है ना, इंसानियत अगर मर जाए तो फिर क्या कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मर चुकी है इंसानियत, मैं तो यही कहूँगी इंसान। जी मैडम, बताइएगा आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और क्यों आप लोग जमा हुए हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, और आप लोगों को क्या मुतालबात क्या आपके माने गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या नहीं, बताइए। हमारे मुतालबात नहीं माने गए, 3 दिन से हम इधर ही हैं, हम 3 दिन से इधर ही हैं। हमारे मुतालबात नहीं माने गए। हमारे मुतालबात यही हैं कि हमारे जो बकाया जात हैं वो हमें दिए जाए, हमारी पेंशन के बारे में, और इस तरह हमारी पे जो बढ़ाई जाए। जिस तरह हमसे काम लिया जा रहा है इस तरह हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जैसे कि पोलियो, डेंगू, मीज़ल, EPI हर काम हमसे करवाया जा रहा है। हमें सिर्फ नेशनल प्रोग्राम बच्चे की सेहत के बारे में भर्ती किया गया था, लेकिन हमसे 10 काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन एक काम की हमें पे दी जा रही है। गुड, 1 मिनट बंद करना है, क्लोज हो गया बस, फाइनल। जी मैडम, बताइएगा आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, कब तक आप लोग यहाँ रुकेंगे, और क्या क्यों नहीं यहाँ से क्यों औरतें यहाँ जमा हुई हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई अमल लाया गया है, कोई आप लोगों के मुतालबात मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताइएगा, तफसील से बताइएगा प्लीज़। भाई हमें 2012 में इन्होंने आर्डर लेटर दिया था, और ये सारे मुतालबात इन्होंने कहा था कि हम पूरे करेंगे। तो उसके बाद 3 साल गुजर गए हैं, इन्होंने कोई हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। सर्विस स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, पेंशन हमारी नहीं है, बकाया जात हमें नहीं मिले, पिछली सर्विस ये नहीं डाल रहे। तो हमने जब इनसे मुतालबात किए हैं तो आज 3रा दिन हो गए हैं, 14 तारीख से हम इधर ही हैं, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। एक दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन दे देंगे, आपको वादा है हमारा, आप उठ के चली जाएं। हमारी मैडम ने कहा कि हम हाथ में लेके तो फिर जाएंगे, इधर से नहीं जाने वाले, हम अपना हक लेके तो जाएंगे इधर से। लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो ये आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और क्या वजह है, और क्यों इस जगह पे आप लोग धरना दे रहे हैं, और कब तक देंगे, और हुकूमत ने अगर आपके ना माने ये जो आपके मुतालबात हैं तो उसके बाद आपका क्या अगला स्टेप होगा, ये सारी बातें तफसील से बताइएगा प्लीज़। जी, हमारा ये मुतालबा है कि हम लोग जो हैं तकरीबन 20 साल से काम कर रही हूँ मैं जी, लेकिन 20 साल के बाद 2012 में हमें परमानेंट किया गया था, और हमारी जो पिछली जो जॉब है, जो काम की है, वो उन्होंने शामिल नहीं किया इसमें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन को पेंशन वगैरह दी जाती है, सारी मराद दी जाती हैं, इसी तरह हमें भी सारे अलाउंसेस वगैरह दिए जाएं, और हमारी पेंशन हो, और ये हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो हमें दिया जाए। दूसरा ये कि एक काम की सैलरी देते हैं, और काम हमसे डेंगू का भी लिया जा रहा है, कोरोना का भी लिया जा रहा है, और ये जो डिलीवरीज वगैरह वो भी लेके जाते हैं हम लोग, और लोगों के घरों का विजिट, ख़ानदानी मनसूबबंदी वाला भी काम करते हैं। सैलरी तो सिर्फ 20,000 मिलती है, इस महंगाई के दौर में 20,000 में गुजारा होता है?
तो ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये हमारे मुतालबे जो पूरे किए जाएँ। दूसरे जो हमारे साथी हैं वो मैडम रुखसाना अनवर और जो उनके 4-5 उनके साथ और हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, उनको हम बहाल करवाना चाहते हैं। तो जब तक ये हमारे जो है मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम इधर ही रहेंगे सड़कों पे इंशाल्लाह। मेहरबानी। कब से यहाँ है और क्यों आई है यहाँ, और ये जो औरतें यहाँ जमा है इसकी क्या वजह है, और ये इन सब के मुतालबात क्या इन ख़वातीन के, ये बताइए। जी हम लोग तीसरा दिन है इधर आई हुई थी और हमारे मुतालबात हैं कि ये हमें हमारे जो है 26 साल हमारी नौकरी को हो गई हैं, तो ये लोग हमारा जो है पिछली सर्विस कंपनी कर रहे हैं, हमारी पे हमें 20,000 दे रहे हैं, कम हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। डेंगू हमसे करवाते हैं, पोलियो ये लोग हमसे करवाते हैं, और जो कोरोना का होता है कोई काम वो भी हमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन हमें उसके मुकाबले में तनख्वाह बिल्कुल ही ना होने के बराबर दे रहे हैं। इस वजह से जो है ना हम लोग इधर आए हैं और धरना दे रहे हैं। हमारी जो है वो सर्विस बुकें नहीं बन रही हैं, हमारे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हम जो है ना काम करवा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा जितने भी सरकारी मुलाजमीन है ये सारे इधर जमा है, और इनके अभी इससे आगे क्या स्टेप है? अगर आपका आपके मुतालबात हुकूमत नहीं मानती तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अगला स्टेप क्या होगा आपका? जी हम इंशाल्लाह अगर हमारे मुतालबात में नहीं माने तो हम लोग जो है ना वो ये डेडलाइन क्रॉस करके हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और अपने जो मुतालबात है वो पूरे करवा करके यहाँ से उठेंगे और जाएंगे घर। बहुत शुक्रिया जी। सारा कुछ कंटेनर लगा चुके हैं, ये खा रहे हैं, ये सारा कुछ हमसे इतने इनको डर खौफ है, तो ये जो है ना सारा कुछ हम कभी सुने कि हेल्थ वर्कर ने कभी किसी के ऊपर धमाका किया हो या जो ना दहशतगर्दी की हो या करप्शन की हो, और जो है ना उनको डर हो हुकूमत को। हमें डर होना चाहिए कि हेल्थ वर्कर का आप हमेशा सुनते हैं कि हेल्थ वर्कर पर धमाका हो गया या हेल्थ वर्कर पर जो है ना लोग शहीद हो गई है, तो हेल्थ वर्कर के साथ ये हालात हैं, हुकूमत के साथ ये हालात नहीं हैं। हुकूमत खुद करप्शन के साथ मिली हुई होती है, हम करप्शन करने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं, हमें हक मिलना चाहिए। कोई हम ये कंटेनर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था। कंटेनर लगाते ये लगाते वो लगाते, हुकूमत ने अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लिया हमसे, वो भी हेल्थ वर्कर से जो आपका हिफाजत कर रही है, आपकी खिदमत कर रही है, घर घर जाके आपको पोलियो के कतरे पिला रही है, डेंगू कर रही है, कोरोना कर रही है, हर बीमारी का जो है ना सामना फेस कर रही है। ये सिर्फ हेल्थ वर्कर का वो हक नहीं दे सकते, ये सिर्फ हुकूमत हेल्थ वर्कर का हक नहीं दे सकती। और हम कितनी ड्यूटियां दे रहे हैं, एक का भी हक नहीं दे सकते। हम लोग तो इतनी ड्यूटियां कर रहे हैं, एक का भी दे दें। रात को डिलीवरी लेके जा रहे हैं, डिलीवरी को हम लोग इतना बड़ा वो दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उनकी तकलीफ़ है, उनका बहुत कुछ हो जाता है, अपने पैसे लगा के। कोई हमें इतना बड़ा वो नहीं दिया जाता, कोई कन्वेंस नहीं है हमारे पास, कोई कुछ नहीं इस तरह का। हम अपने पैसे लगा के उनको लेके जा रहे हैं, हम अपना पैसा लगा के 20,000 तनख्वाह है, अपने भी लगाते हैं, उनका भी करते हैं। ये क्या है? और जो मास्टर हैं, एमफिल हैं, वो भी 20,000 ले रही हैं, जो मैट्रिक हैं, मिडिल हैं, वो भी 20,000 ले रही हैं। ये कौन सा